it's a power of 2 or not. So before getting into this problem statement, let's first try to understand a very important and fundamental concept regarding binary numbers. So let's say I have a number 2. अब अगर हम देखें 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इट इज 0 0 1 0. अच्छा, अगर हम इस 2 को एक नंबर रेड्यूस कर दें विच इज नथिंग बट 1, सो व्हाट विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग 0 0 0 1. अगर मैं इसका bitwise AND लूं, लॉजिकल AND नहीं, bitwise AND, which means I'll take bitwise AND between each and every bits of this number, तो रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा, right? So let's take another example and then we'll try to understand what is the relationship or what I'm trying to prove here. Let's say मैंने एक नंबर लिया 8, ठीक है. Clearly we know that 8 is also a power of 2 number, but we'll get to that later on. चलो पहले देखते हैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 0 0, राइट. अच्छा, 7 क्या है, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0 1 1 1 1, राइट. अगर मैं वापस इसका बिटवाइज एंड लूं तो फिर क्या होगा, ये 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. सो नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं कोई एक नंबर जो कि पावर ऑफ 2 है, अगर मैं ये लूं और उसको बिटवाइज एंड करूं विद अ नंबर विच इज 1 लेस देन दिस नंबर, तो मुझे जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 0 आएगा. You can try this with any other number which is power of 2 and you'll always get the answer as 0. Let's take another counter example now over here. Let's say मैंने यहाँ पे 10 लिया, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1 0 1 0. अच्छा, एक नंबर कम कर दें तो 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, वेल इट विल बी 1 0 0 1, ठीक है. अब अगर मैं इसका एंड लूं, बिटवाइज एंड लूं, तो इट विल बी 1 0 0 0, राइट. तो नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर कि इसका आंसर 0 नहीं है जबकि इनके आंसर्स 0 आए हमें. सो ये वो आइडिया है, ये दिस इज द फंडामेंटल आइडिया विच विल हेल्प अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि ये है कि अगर कोई नंबर पावर ऑफ 2 है तो अगर हम उस नंबर को एक नंबर रेड्यूस कर दें और फिर उसका बिटवाइज एंड ले लें तो वो जो नंबर है वो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होने वाली है, right? So that is what the idea we are going to try to implement here. So जो कोड होगा, अगर मैं इस पूरे आइडिया को if I try to translate into code, so the entire code would be for just one line. वो क्या होगा, I just need to check that n, which is my given number, n ampersand यानी कि bitwise AND operator minus n minus 1. If this whole thing, if this results me into a 0, then I can say that the given number, given n is power of 2. So मैं इसको एक if condition के अंदर लिख सकता हूँ. If this is so, then I can simply print cout. I can see out what, yes, right, else it's a no. And this is the idea which I am talking about, right? So ये वो fundamental idea है and this is the first method in which we can use it to find it out whether a given number is a power of 2 or not. So let's see in a code. So now, so ये हमारा बॉयलरप्लेट कोड है जहाँ पे हम एक नंबर n which is equal to 19 हम पास ऑन कर रहे हैं, and this is the method 1 wherein we are testing whether the given number is power of 2 or not. So अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, if I just let me just remove this thing and let's see. If I run the code now, let's see what we get as an output. We get an yes which says that 19 is a power of 2. So here is the boilerplate code for the function और हम यहाँ पे 19 as a value pass कर रहे हैं. So now as you can see over here, हम क्या कर रहे हैं, basically n and n minus 1 को टेस्ट कर रहे हैं. Now I'm using a complement sign in order to, हमें पता है कि ये जो ऑपरेशन है, if n is a power of 2, this whole expression would turn out to become 0, ठीक है, और not of 0 is 1. So if condition में if this turns out to be a 1, हम print out कर देंगे yes, else it will print out no. So it is just to, this not condition is
added just to pass this if condition, ठीक है. But now here is a catch. प्रॉब्लम क्या है इस कोड में एक एज केस मिसिंग है, एंड दैट इज व्हाट इफ द n इज इटसेल्फ अ जीरो. सो प्रॉब्लम क्या होगी, इफ दिस n इटसेल्फ इज अ जीरो, देन दिस एक्सप्रेशन वुड अगेन पास द टेस्ट केस, राइट. और अगर ये टेस्ट केस पास कर जाएगा, सो दिस कोड विल ब्रेक. Therefore, in order to handle this test case, what we'll do is we'll test for this n कि ये जीरो तो नहीं है, by just adding n and then using the logical AND along with this expression. So now this edge case also gets handled out. Now let's run the code and see whether this edge case is getting handled or not. And as you can see, the answer is no. हमें पता है कि 0 is not a power of 2 and therefore it is working well correctly. So now let's talk about method number 2. अभी जो method number 2 है, it's a recursive approach. So let me write it down over here. It's a recursive approach. So before understanding this recursive approach, let's try to see this approach in a pictorial form. ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हमें मिले. अगर हम देखें कि अगर मैं एक पावर ऑफ 2 नंबर लूँ और इसे रिकर्सिवली डिवाइड बाई 2 करूँ, यानी कि एट एवरी स्टेप आई जस्ट हाफ इट. सो पहले 16 था, हाफ किया तो 8 हुआ, हाफ किया तो 4 हुआ, हाफ किया तो 2 हुआ, हाफ किया तो 1 हुआ. अब 1 को अगर मैं फर्दर हाफ करूंगा तो जो इंटीजर वैल्यू होगी वो मुझे 0 आ जाएगी. अब अगर मैं ये एक चीज नोटिस करूं, अगर 16 सिंस इट्स अ पावर ऑफ 2, जब भी मैं इसे हाफ कर रहा हूं, आई एम लैंडिंग ऑन अ नंबर विच इज अगेन अ पावर ऑफ 2. सो 16 से हम 8 पे गए तो 8 itself is a power of 2, 4 is again a power of 2, 2 is itself a power of 2 and 1 is again a power of 2, and ऐसे further divide करेंगे तो again we'll go to 0 which is 0, right. So which is the base case I would say, और हम 1 को भी बेस केस मान सकते हैं. हम अपने कोड में 1 को बेस केस लेके चलते हैं यहाँ पे इस रिकर्सिव अप्रोच के लिए. सो दिस इज द आइडिया विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि अगर एक नंबर पावर ऑफ 2 है तो हम उसे कितनी बार भी हाफ करें वो हमेशा पावर ऑफ 2 ही रहेगी, वो कभी पावर ऑफ 2 से हटेगी नहीं. लेट्स टेक एन काउंटर एग्जांपल. लेट्स से 6. नाउ 6 इज एन इवन नंबर बट इट्स नॉट अ पावर ऑफ 2. सो अगर 6 को हम हाफ करें तो वो 3 हो जाएगा, विच इज नाउ एन ऑड नंबर. देयरफॉर फ्रॉम 6 we landed up to a number which is 3, which is an odd number, and therefore we can simply say that 6 एक power of 2 नहीं है, because we are ending or we are landing upon a number which is odd, or also we can say that it's not a power of 2. ठीक है, so इसी आइडिया को हम कोड में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. so let's see in this action. so सबसे पहले जो हमारा बेस केस होगा वो ये होगा कि if my n itself is 0, because ये एक edge case है, therefore we'll simply return a false अगर ऐसा हुआ तो. वरना while my n is greater than 1, हम क्या करेंगे, we'll keep on decrementing the value of n by half. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली n को n से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे. बट बिफोर दिस we'll also make sure हम चेक करेंगे क्या n नेगेटिव तो नहीं है. if n is not a negative number, sorry not a negative number, not an odd number, अगर n odd number है which is checked by this expression, ठीक है, ये नंबर हमें बताता है, ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि कोई नंबर ऑड है कि नहीं. अगर ऑड है तो सिंपली रिटर्न अ फॉल्स देन एंड देयर इटसेल्फ, क्योंकि हमें फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है. दैट इज अगर मुझे कोई नंबर ऑड मिल गया, इफ आई लैंडेड ऑन एन ऑड नंबर, इसका मतलब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. हम यहीं से डिक्लेयर कर सकते हैं कि नंबर जो है, जो स्टार्टिंग नंबर था हमारा, जैसे हमने शुरुआत की थी, वो एक पावर ऑफ 2 नहीं है. देयरफॉर we can simply terminate the recursion and simply return false. अगर ये नहीं हुआ, that means we have reached 1, because हमारी जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी. therefore हमने जहाँ स्टार्ट किया था वो नंबर स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पावर ऑफ 2 था. therefore we'll return a true over here, and that's it. this is the code for writing the recursive approach for checking. तो हम इसे रन करके एक बार देखते हैं क्या आउटपुट हमारा, and you will see that for 0 it is a no. Okay, let's test it for some big number. Let's say 64. And we can see that the answer is yes. Therefore this approach is working perfectly fine. Now let's talk about method number 3. जो method number 3 है,
ये बहुत ही सिमिलर है, आई वुड से नॉट इवन सिमिलर, इट्स वेरी आइडेंटिकल, इट्स आइडेंटिकल टू काउंटिंग सेट बिट्स। अगर आपने ये प्रॉब्लम पहले कभी फेस किया है कि गिवन अ बाइनरी नंबर एंड वी नीड टू टेल हाउ मेनी सेट बिट्स आर प्रेजेंट इन दैट बाइनरी नंबर, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही है, बस इसे फ्रेम करने का तरीका अलग है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम। सो बिफोर ट्राइंग टू, 1 मिनट के लिए हम ये जो प्रॉब्लम है ना, फाइंडिंग चेकिंग वेदर द नंबर इज पावर ऑफ 2 और नॉट, इसको 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और लेट्स ट्राई टू टैकल अनदर प्रॉब्लम विच सेज दैट काउंटिंग सेट बिट्स। अगर मुझे काउंट करना है सेट बिट्स, तो लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 0 1 0 1 0 1 1, लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, सम रैंडम बाइनरी नंबर, ठीक है। अब मुझे बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स सेट हैं, तो एज वी कैन सी इट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो एक तरीका तो होगा कि ओके आई कैन जस्ट सिंपली रन अ फॉर लूप और मैं चेक कर सकता हूँ कि हाँ कौन कौन से बिट्स सेट हैं, ठीक है, बाय राइट शिफ्टिंग दिस ऑपरेटर। सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंटिन्यूसली एक वाइल लूप रन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाइल रन कर सकता हूँ वाइल माई एन इज नॉट 0, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरा काउंट है इसको मैं इंक्रीमेंट करता रहूँगा, ठीक है। काउंटर एक वेरिएबल होगा मेरा यहाँ पे, और मेरे जो नंबर होगा ये बेसिकली राइट शिफ्ट होगा 1 से, ठीक है। और ये मैं करता रहूँगा जब तक मेरा n पॉजिटिव है। इससे क्या होगा, और ये चीज़ हम करते रहेंगे विद एन इफ कंडीशन बेसिकली। तो वो इफ कंडीशन ये होगी, मैं यहाँ पे वो इफ कंडीशन लिख देता हूँ, वो इफ कंडीशन ये है बेसिकली, तो बेसिकली वो इफ कंडीशन ये होगी, मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन में सॉर्ट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। वो इफ कंडीशन क्या होगी, वो इफ कंडीशन ये होगी कि जो मेरा n है अगर उसका राइट मोस्ट बिट अगर सेट है, इफ दिस इज द सेट बिट, ठीक है, तो आई विल सिंपली इंक्रीमेंट माई काउंटर, एल्स आई विल नॉट इंक्रीमेंट माई काउंटर, बिकॉज हम क्या काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वंस को, इफ द राइट मोस्ट बिट इज सेट और नॉट, ठीक है। तो हम ये एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, बट इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स, राइट, दैट्स द लेंथ ऑफ द बिट्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ द बिट्स के बराबर है, तो विच विल बी लॉग इन, राइट। सो ये लॉग इन अप्रोच है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये तो काउंटिंग सेट बिट्स हो गया। ओके, क्या मैं इस चीज को फर्दर इंप्रूव कर सकता हूँ? कैन आई इंप्रूव दिस मेथड? कैन आई ऑप्टिमाइज दिस मेथड अ लिटिल फर्दर? यस, वी कैन। सो नाउ let's try to understand this new optimized version with an example. Let's say मेरे पास एक नंबर है 4, ठीक है, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा 0 1 0 0। ओके, अच्छा, मैं वापस से इस नंबर को एक नंबर रिड्यूस करके देखता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक नंबर 3, ठीक है, तो ये होगा 0 1, सॉरी ये होगा 0 0 1 1, ठीक है। अब अगर मैं इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन लूँ तो I can see that the answer would be 0 0 0 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर है, ये जो 1 था यहाँ पे जो सेट था पहले, ठीक है, अगर हम देखिए ये जो बिट था जो कि ये था जो कि सेट था पहले, ठीक है, आफ्टर दिस ऑपरेशन, ठीक है, दैट बिट गॉट अनसेट, ठीक है, सो विच रिजल्टेड मी इन all zeros, ठीक है। लेट्स टेक अनदर बेटर एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास 10 है 1 0 1 0 इन बाइनरी, ठीक है। इफ आई टेक 9, व्हाट इट इज, वेल इट इज नथिंग बट 8 दिस थिंग, राइट। अब अगर मैं इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन लूँ तो किस तरह से होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी होगा 0 और ये रह जाएगा 1, राइट। नाउ जो चीज गौर करने की है वो ये है कि ये जो नंबर है 10, यानी कि ये जो नंबर है इसमें जो राइट मोस्ट सेट बिट है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, वो अनसेट हो जा रही है, मतलब दैट इज बिकमिंग 0 इफ आई एम परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन 1 टाइम, ठीक है। अगर मैं इस ऑपरेशन को दोबारा परफॉर्म करूं दैट इज द न्यू वैल्यू वुड बी दिस थिंग, एंड नाउ अगेन इफ आई परफॉर्म and bitwise AND operation with a number which is less than this number, therefore this number would also get become 0, ये नंबर भी 0 हो जाएगा अगला इटरेशन में, ठीक है। तो यही आइडिया जो है हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, जब हम इसे 1 टाइम परफॉर्म करते हैं तो ये जो राइट मोस्ट सेट बिट है उसको ये अनसेट कर देता है,
ठीक है। और जब इस ऑपरेशन को हम दोबारा परफॉर्म करते हैं तो ये फिर से जो राइट साइड से राइट टू लेफ्ट की तरफ, यानी कि फ्रॉम राइट हैंड साइड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन में जो नेक्स्ट सेट बिट है उसको ये वापस से अनसेट कर देता है। सो इसी आइडिया को इंकॉर्पोरेट किया गया है। इससे एडवांटेज क्या है, हाउ इट इज ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। सी इस ऑपरेशन इस मेथड में वी वर ट्रैवर्सिंग ऑल द नंबर्स, ऑल द बिट्स वन बाय वन, ठीक है, और हम उन्हें चेक कर रहे थे वेदर दे आर सेट टू 1 और नॉट। बट यहाँ क्या हो रहा है, इस मेथड में हम वंस पे जंप कर रहे हैं। बेसिकली वी आर नॉट bothered about these zeros, we are only bothered about the set bits. Therefore if I have a number, let's say I have a number 1 1 and let's say यहाँ पे बहुत सारे zeros हैं, ठीक है, let's say these are 30 zeros, continuously 30 zeros है यहाँ पे मेरे पास। तो normally इस अप्रोच में, in this approach हम 30 zeros से ट्रैवर्स करते बिट्स से ट्रैवर्स करते एंड देन हम 1 को एनकाउंटर करते। बट यूजिंग दिस अप्रोच हम क्या करेंगे, डायरेक्टली विल जंप ऑफ टू द फर्स्ट जीरो। ये गलत हो गया थोड़ा सा, एक मिनट, ये जो है ये इस तरह से, हाँ, हम डायरेक्टली इस वन पे जंप करेंगे, विल चेक वेदर विल अनसेट दिस वन एंड देन द नेक्स्ट वन विल बी अनसेट इन द नेक्स्ट आइटरेशन। देयरफॉर वी विल स्किप ओवर द जीरोस। और ये ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो है हमारे एल्गोरिथम को और बूस्ट देता है और स्पीड अप देता है। सो नाउ लेट्स सी दिस इन एक्शन इन द कोड। सो नाउ इफ यू सी, मैंने यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर दिया है। अब अगर हम इसे पढ़ें तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल काउंटर डिक्लेयर कर दिया है और हम ये लूप को n इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 1 तक हम इसे रन कर रहे हैं और हम यहाँ पे सिंपली काउंट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, n को हम इस ऑपरेशन के दिस एक्सप्रेशन मेक श्योर दैट जो राइट मोस्ट सेट बिट है वो 0 हो जाए, ठीक है। एंड विथ एवरी number of this thing, with every iteration this count value keeps on incrementing और फाइनली हमारे पास द काउंट ऑफ वंस आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम काउंट को रिटर्न कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो काउंट ऑफ वंस अगर 1 के बराबर है, देयरफॉर इट इज नथिंग बट अ पावर ऑफ 2। ओके, सो दिस समथिंग टू बी अंडरस्टूड कि जो भी पावर ऑफ 2 होते हैं, ठीक है, पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स होते हैं, उनमें जो काउंट ऑफ वंस होते हैं ना वो हमेशा 1 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, कहाँ है, ओके लेट्स सी हियर, 2 है, तो 2 का अगर मैं 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लूँ तो इट इज दिस थिंग। अगर मैं 4 लूंगा तो वो इस तरह से होगा, अगर मैं 8 लूंगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, अगर मैं 16 लूंगा तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी सारे जितने भी पावर ऑफ 2 हैं उनमें जो नंबर ऑफ वंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। लेट मी टेक एक काउंटर एग्जांपल, लेट्स से 18 लिया मैंने। अगर हम 18 लेंगे तो ये जो हो जाएगा 1 होगा, जिनकी 16 हो गया, ये 0 हो गया 8, ये हो गया हमारा 18। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे तो जो नंबर ऑफ वंस है वो 2 हो गए, ठीक है। सो इवन दो इट्स एन इवन नंबर बट इट्स नॉट अ पावर ऑफ 2, ठीक है। सो यही आइडिया को हमने यहाँ एम्प्लॉय किया है। हमने सिर्फ ये चेक किया है कि जो कोड में कि जो ये जो लूप है ये हमें काउंट ऑफ वंस दे देगा, और अगर काउंट ऑफ वंस 1 के बराबर है यानी कि वो पावर ऑफ 2 है, अगर वो नहीं है तो पावर ऑफ 2 नहीं है। सो ये वो 3 तरीके हैं, ये 3 मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए टू गिव यू एन इनसाइट और टू गिव यू ऑल द पॉसिबल मेथड्स कि हम कैसे एक नंबर को चेक कर सकते हैं वेदर इट्स पावर ऑफ 2 और नॉट, ठीक है। होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, सो थैंक यू।